بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عوام پر بم گراتے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے نیا فائنینشل ماڈل تیار کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت پر مالی دباؤ کم کرنے کے لیے لاہوریوں سے صفائی فیس کی مد میں 8.5 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ جی بالکل، آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے نیا فائنینشل ماڈل مرتب کیا ہے۔ صفائی فیس کی مد میں لاہوریوں سے 8.5 ارب اکٹھے کیے جائیں گے، جبکہ پنجاب حکومت کے خزانے کو واضح ریلیف ملے گا۔ پنجاب حکومت اس وقت LWMC کو 14 ارب روپے دے رہی ہے اور اس نئے فائنینشل ماڈل کے بعد پنجاب کو صرف 6 ارب روپے دینا ہوں گے۔ نئے نظام کے تحت شہریوں کے گھروں سے کوڑا اٹھایا جائے گا، جبکہ شہریوں سے ماہانہ صفائی فیس وصول کی جائے گی۔ فیس وصولی بجلی کے بلوں کے ذریعے کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ سٹی 42 ریحان گل۔ ریحان بتائے گا، عوام پر ایک اور بم گرایا جا رہا ہے۔ جی، پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں صفائی کا نظام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمت لی گئی اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ نیا صفائی کا نظام تجویز کرے۔ جو مجوزہ صفائی کا نظام ہے اس کے تحت اب گھروں سے کوڑا اٹھایا جائے گا، جس کے عوض صارفین سے کچھ فیس وصول کی جائے گی۔ جو فائنینشیل ماڈل تیار کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لاہوریوں سے صفائی فیس کی مد میں تقریباً 8.5 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے، جس سے پنجاب حکومت کے مالی بوجھ میں واضح کمی آئے گی، کیونکہ اس وقت پنجاب حکومت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو 14 ارب روپے ادا کر رہا ہے۔ 8.5 ارب روپے لاہوریوں سے لیے جائیں گے صفائی فیس کی مد میں، جس سے صرف پنجاب حکومت کو 6 ارب روپے ادا کرنا ہوں گے۔ جبکہ یہ بھی تجویز زیر غور ہے کہ جو LWMC کی صفائی فیس کی وصولی ہے وہ بجلی کے بلوں کے ذریعے کی جائے، جس سے لیسکو سے بھی معاملہ چل رہے ہیں۔ جب وہ حتمی ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس تجویز پر بھی عمل درآمد کر لیا جائے گا۔ تجویز بھی زیر غور ہے۔ شکریہ تفصیلات سے کرنے کے لیے ریحان گل۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20% اضافے کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر کمیٹی کرایوں میں اضافے پر رپورٹ بنائے گی۔ رپورٹ 3 ہفتوں میں ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے۔ علی رامے بتائے گا، کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کون کون اس کمیٹی میں شامل کیا گیا؟ ٹرانسپورٹر کی طرف سے حکومت پنجاب سے التجا کی گئی کہ جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے ان کے کرایوں میں 25 سے 30% اضافہ کیا جائے، اور اس پر محکمہ ٹرانسپورٹ کی طرف سے ایک سمری ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کی گئی، جس پر کیبنٹ نے اس سمری کو مسترد کیا اور کہا کہ ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ منسٹر ٹرانسپورٹ ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے نان AC اس کے کرایوں میں بڑھانے کے لیے ٹرانسپورٹر کی طرف سے بارہا دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس پر جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ فوری طور پر ایک رپورٹ جو ہے باقاعدہ طور پر تیار کریں۔ اب اس میں منسٹر ٹرانسپورٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ بھی ہیں، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری لا اور دیگر افسران کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ کمیٹی 3 ہفتوں میں رپورٹ سبمٹ کرے گی کہ جو نان AC بسیں ہیں ان میں کرایوں میں کتنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو اس پر ٹرانسپورٹر نے کہا کہ فوری طور پر یہ کرایہ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا جائے گا، جس پر حکومت پنجاب نے نوٹس لیا اور اس پر ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنے پیرامیٹرز کے مطابق جو ہے وہ یہ کارروائی کریں گے اور ان کے کرایہ میں اضافہ کریں گے۔ لیکن پہلے تو 25 سے 30% اضافے سے انکار کیا، لیکن اب 20% کرایہ بڑھانے کی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے آپ کا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ضلعی عدالتوں کے ججز کے لیے اہم فیصلہ۔ ججز اور ان کی فیملیز کو بہترین اسپتالوں میں علاج کی سہولیات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جوڈیشل آفیسرز کے علاج معالجے کے لیے صحت کارڈ کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے تمام سیشن ججز کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ جوڈیشل آفیسرز کی بیوی، والدین، غیر شادی شدہ بچوں کو قوائف طلب کیے گئے ہیں۔ صحت کارڈ کا مقصد ججز کی فیملیز کے علاج کی مشکلات کم کرنا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ سیشن ججز ماتحت جوڈیشل آفیسرز کے قوائف بھجوائیں، جوڈیشل آفیسرز اور فیملی ممبرز کے شناختی کارڈ نمبرز بھی بھجوائے جائیں، یہ بھی کہا گیا، جبکہ صحت کارڈ کے بدلے میں ماہانہ تنخواہ سے کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل لاہور جنرل اسپتال کا مریضوں کے مفاد میں اہم فیصلہ کر لیا گیا۔ MRI ٹیسٹ کرانے کے اوقات کار میں اضافہ کر دیا۔ ٹیسٹ صبح 8 تا رات 12 بجے تک ہو سکیں گے۔ پروفیسر خالد محمود کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔
जी बिल्कुल, आपको सूरत हाल से आगाह करते चलें। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल का कहना है कि सहूलत से ज़्यादा मरीज मुस्ताफीद हो सकेंगे। मरीजों के इलाज में ताखीर का अजाला होगा और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि औकात कार में इजाफा किया गया है। मरीजों को ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सरबराह जनरल अस्पताल का ऐसा कहना है। सहूलत से ज्यादा मरीज मुस्तफीद होंगे, जबकि प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की जानिब से ऐसा कहा गया है। सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए बी फॉर्म लाजमी कर दिया गया है। स्कूल सरबराहान को सेस पर पहले से दाखिल बच्चों के बी फॉर्म का इंदराज भी कराना अब लाजमी होगा। बे फॉर्म के इंदराज के बगैर किसी तालिब इल्म को इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आपको आगाह करते चलें, ये तमाम तर सूरत हाल है। जुनेद रियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, आगाह कीजिएगा मामले से मुताल्लिक। स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के लिए जो है वो बे फॉर्म लाजमी करार दे दिया है। अब जितने भी बच्चे स्कूलों में दाखिल होंगे तो उनको दाखिलों के लिए जो है बे फॉर्म पेश करना जो है वो लाजमी होगा। दूसरी जानब महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों को ये हदायत की है कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि सिस है उसके ऊपर जितने भी बच्चे पहले से इनरोल्ड हैं उन बच्चों के भी बे फॉर्म जो हैं उनका इंदराज जो है वो फौरी तौर पर किया जाए। उनका ये भी कहना है कि जिन बच्चों के बे फॉर्म का इंदराज स्कूलों में नहीं किया जाएगा उनको अगली जमात में प्रमोट करने में जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुश्किलात पेश आती हैं। इस हवाले से उन्होंने हदायत की कि फौरी तौर पर स्कूल सरबराहान जो हैं वो अपने जो बच्चे पहले से इनरोल्ड हैं उनके बे फॉर्म का इंदराज जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो करें। 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है तमाम स्कूल सरबराहान को बे फॉर्म के इंदराज के लिए। और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जो स्कूल सरबराहान 31 अक्टूबर तक डाटा या बे फॉर्म का इंदराज जो है वो इसके ऊपर नहीं करेंगे उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी जानब नए दाखिलों के लिए तो लाजमी करार दे दिया है और बे फॉर्म के बगैर जो है वो नए बच्चों को दाखिला जो है वो स्कूलों में नहीं दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे शहर भर में मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूसों और मजालिस की बराह रास्त मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में अलाइड महकमों के डेस्क कायम किए गए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर भर की मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूसों और मजालिस की बराह रास्त मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा। जी, डीसी ऑफिस लाहौर में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मरकजी जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है वो कायम कर दिया गया, जिसमें पुलिस 1122 रेस्क्यू के स्टाफ जो है वो रखा गया, जबकि इसके साथ साथ ईदी का स्टाफ होगा, जबकि महकमा सेहत का भी एक डेस्क जो है वो इसमें बनाया गया। आपको बताएं कि मेरे अकब में नज़र आने वाले ये जो मैप्स हैं ये आपको दिखाते हैं कि पांडो स्ट्रीट कृष्ण नगर में जो इस्लामपुरा से मरकजी जुलूस 9 मुहर्रम को निकलेगा उसके रूट को येलो टैग किया गया है और इस रूट के हवाले से तमाम तर जो कैमरों की इंस्टॉलेशन है वो कर दी गई। इसी तरह से जो 9 और 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस है जो कि निसार हवेली से बादस नमाज इशा यानी 11 बजे के करीब ये बरामद होगा निसार हवेली से। उसके बाद शब अशूरा की शब जो है वो ये पहुँचेगा करबला गामे शाह जहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह से जो 9 और 10 मुहर्रम को मरकजी जुलूस जो है वो ये ठोकर न्याज बेग का जो रूट है उसका तयन कर दिया गया है और तमाम तर इंतज़ामात हैं। इसी तरह से मेरे बिल्कुल सामने नज़र आने वाला शादमान का मरकजी जुलूस है जो कि चौथा बड़ा जुलूस है। इसी तरह से 5वां बड़ा जुलूस जो कि सैयद नजमुल हसन शाह की रिहाइशगाह 145A मॉल टाउन से बरामद होगा और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जो है वो इख्तिताम पजीर होगा ये जुलूस। जबकि तमाम जुलूसों के रूट्स पर तजावज़ात का खात्मा, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, पैच वर्क्स की वक्त तकमील के साथ साथ जो है वो 399 जो CCTV कैमराज हैं वो लगाए गए और इनकी मॉनिटरिंग की गई। जबकि शिकायत के हवाले से अगर कोई शिकायत भी हो किसी रूट के हवाले से तो शहरी यहाँ पर कॉल भी करते हैं। आपको ये बताएं कि इसका सुबह दौरा भी किया डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने और इंतजामात का वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे लड़की की जिन्स तब्दील करवा कर लड़का बनने की ख्वाहिश। हाई कोर्ट ने जिन्स तब्दीली केस में मुतल्लिका महकमे के सीनियर ऑफिसर को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सेहत परिकैंत से रिपोर्ट भी तलब की गई। जस्टिस जवाद हसन ने लड़की सबा की दरख्वास्त पर तहरीरी उबूरी हुक्मनामा जारी किया है। जी हाँ, तहरीरी उबूरी हुक्मनामे के मुताबिक जिन्स तब्दीली का मामला हसास है। दरख्वास्त आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है, जबकि ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत तब्दीली जिन्स की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार सर्जरी करवाने का कानूनी हक रखता है। लॉ ऑफिसर आइंदा समात पर अदालत की मुआवनत करे। उबूरी हुक्मनामे में ऐसा भी बताया गया, जबकि यह भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार वकील भी तैयारी के साथ पेश हो। जिले अदालतों में जजेस के लिए जुडिशियल सर्विस एक्ट लाने का मामला है। वजीर आला की नैब पेशी के बाद एक्ट मंजूरी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। हाई कोर्ट के इंतजामी राब्ते के बावजूद वजीर आला का सुस्त रवि का मुजाहरा। वजीर आला ने जुडिशियल सर्विस एक्ट पर रजामंदी जाहिर की थी, जराए ये बताते हैं, जबकि जराए का ऐसा भी कहना है कि रवामा जुडिशियल सर्विस ऑर्डिनेंस लाने की भी हामी भरी थी। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानब से पंजाब हुकूमत के साथ एक राब्ता था, जिसमें वज़ीर आला ने इस बात की हामी भरी थी कि सर्विस जुडिशियल एक्ट लाया जाएगा, जिसके तहत सूबा भर के जो जुडिशियल अफसरान हैं, सिविल जज से लेकर सेशन जजेस तक, तमाम की मुलाजमत की उम्र की हद 62 साल कर दी जाएगी और उनकी जुडिशियल अलाउंस को भी पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। इस बात पे भी वज़ीर आला पंजाब ने हामी भरी थी कि रवां माह ही एक्ट पास करने से पहले जुडिशियल ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जुडिशियल सर्विस ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जिसके तहत फौरी तौर पर इसका इतलाक भी कर दिया जाएगा। ज़रा का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की नैब में शराब लाइसेंस केस की पेशी के बाद वो काफ़ी परेशान है और जो जुडिशियल एक्ट का मामला था वो खटाई में पड़ गया है और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानब से बार बार राब्ता करने के बावजूद वज़ीर आला जो है वो इस मामले पर खामोश हैं और इस मामले को तवालत देना चाह रहे हैं। ज़रा का ये भी कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हैं बहादुर अली खान, उनसे 2-3 मुलाकातें भी की थी और इन मुलाकातों के दौरान जो वज़ीर कानून है वो भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात की हामी भरी थी कि जुडिशियल सर्विस एक्ट लाया जाएगा और पेंशन का हिस्सा होना था। जरा ऐसा बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की, जिनका कहना है कि चैलेंजेस हैं मगर मसाइल हल करके आवाम के पास जाएंगे। महंगाई कम करना हुकूमत की तरजीहात में अव्वलीन है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। परेशानी की बात नहीं, हालात बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब बदल रहा है, खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब को तरक्की के उरूज पर ले जाना मिशन है। अब कुछ बात करेंगे राना सनाउल्लाह केस की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस की समाअत है। राना सनाउल्लाह के वकील ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दे दी, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह असेंबली इजलास की वजह से हाजिर नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि फरहाद अली शाह ने कहा है कि एंटी नारकोटिक्स अदालत ने दरख्वास्त दायर की है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस की समा 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने वकला को मुतफर्रिक दरख्वास्त पर बहस का आखिरी मौका दे दिया। अभी आपको बताएंगे नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई तोड़ फोड़ का ये केस है। लीगी रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। आपको बताते चलें कि दरख्वास्तें दायर करने वालों में साबिक डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन भी शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर शाहीन अतीक। शाहीन अतीक, बताइएगा इस केस के हवाले से। जी, ठोकर न्याज पेपर नैब के दफ्तर के बाहर जो हंगामादारी हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वर्कर और MP हजरात के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया था। आज सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज शकील अहमद की अदालत में जो है वो मुस्लिम लीग के जो है वर्कर भी और मुस्लिम लीग के जो MP हैं और साबका डिप्टी मेयर हैं शहाबुद्दीन और दीगर जो MP हैं वो भी यहाँ पर जो है वो अपनी दरख्वास्त ज़मानतें दायर करने के लिए आए हैं। मेरे पास यहाँ पर डिप्टी मेयर
राव शहाबुद्दीन मौजूद हैं। इसके अलावा इजाज़ हफीज़ हैं, डिप्टी मेयर अख्तर हुसैन बादशाह हैं, ये MP हैं। इसके अलावा उस्मान पाशा हैं, साबिक वाइस चेयरमैन हैं, और मियाँ तारिक महमूद डिप्टी मेयर, ये इन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो दायर की हैं। मेरे पास यहाँ पर मियाँ राव शहाबुद्दीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आए, वहाँ पर जो हंगामा हुई थी उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी से हुक्म था कि अभी आपने ज़मानत नहीं करवानी, लेकिन अब कल का हमें मैसेज मिला है कि आप ज़मानतें करवाएं, तो हम इंशाल्लाह हम ज़मानतें करवाने आए हैं। और हमारे जो हौसले हैं वो बड़े मजबूत हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और ये साबित कर जो हमारे साथ ज़्यादती है, नैब जो ज़्यादती हो रही हैं, इनका हम डट के मुकाबला करेंगे। आप बताइए। ठीक है, शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी 42। गुलाब देवी अस्पताल के सामने बिजली की 11 kV तारें गिर गई हैं। लेस्को का अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंचा है, जबकि बिजली भी बंद नहीं की गई है। को बताते चलें कि रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ की सड़कों को बंद कर दिया है। तो सूरत हाल आपके सामने है। गुलाब देवी अस्पताल के सामने बिजली की 11 kV के तारे गिर चुके हैं और रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया है और तार हटाए जा रहे हैं। दोनों तरफ की सड़कों को बंद कर दिया गया है। गुलाब देवी अस्पताल के सामने बिजली की 11 kV तारें गिर गई हैं। लेस्को का अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंचा है, जबकि बिजली बंद नहीं की गई है। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर दोनों अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया है, जबकि आपको बता रहे हैं कि लेस्को का अमला मौके पर नहीं पहुंचा है और रेस्क्यू अमला मौके पर मौजूद है। और रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर दोनों तरफ की सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चलें, गुलाब देवी अस्पताल के सामने बिजली की 11 kV की तारें गिर चुकी हैं। लेस्को का अमला ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सका है और बिजली को ताहाल बंद नहीं किया गया, जबकि रेस्क्यू हुक्काम मौके पर मौजूद हैं और दोनों अतराफ से सड़कों को बंद किया गया है ताकि कोई भी शहरी आगे ना आ पाए और कोई नुकसान ना हो। लेस्को का अमला ताहाल जाए वकुआ पर मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब खबर आपको देंगे, सूबे में कुत्ते काटने की वैक्सीन की शदीद किल्लत है। पंजाब में कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब ना होने का इंकशाफ हुआ है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम, बताएगा आखिर क्यों दस्तयाब नहीं है वैक्सीन? बिल्कुल, हर साल सुबह भर के अंदर जो कुत्ते काटने के जो केसेस हैं वो 2 लाख से ज़ायद हर साल जो है वो रिपोर्ट होते हैं, मगर इस वक्त भी शहर के बेशतर हस्पतालों के अंदर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर रेबीज़ वैक्सीन, एंटी रेबीज़ वैक्सीन की जो है वो किल्लत होने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से जो चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं उनकी जानिब से मरासला जारी किया गया है। चीफ ड्रग कंट्रोलर अब तक जो सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एंटी रेबीज़ वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाने में जो है वो कामयाब नहीं हो सके, जिसके पेश नज़र 9 कंपनीज को जो अदविया साज कंपनियां हैं उनको मरासला जारी किया गया, जिसके अंदर वाज़े तौर पर बताया गया है कि एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन की फराहमी ना होने की वजूहात को जो है वो सामने रखा जाए और साथ ही साथ इनकी जो फराहमी है इसको हर हॉस्पिटल में जो है वो यकीनी बनाया जाए। तमाम THQ हॉस्पिटल्स, DHQ हॉस्पिटल्स जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंडर काम कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज़ वैक्सीन मौजूद होना जो है वो लाजमी है, मगर इसको अब तक जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से जो है वो चीफ ड्रग कंट्रोलर ने मरासला जारी किया गया है 9 कंपनीज़ को कि जल्द अज जल्द ये जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है इसकी फराहमी को बहुत यकीनी। शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। जबकि LD एवेन्यू 1 का देरीना मसला हल होने के अब करीब है। एवेन्यू 1 में शामिल चेन्यूट हाउसिंग ने 17 साल बाद आमादगी का इजहार कर दिया। चेन्यूट हाउसिंग सोसाइटी के सदर ने बातचीत पर आमादगी का इजहार किया है। चिन्यूट हाउसिंग की 1550 कैनाल अराजी का दरीना मसला हल हो चुका है। एवेन्यू 1 के 1000 बकाया अलॉटी एडजस्ट हो जाएंगे। राना टिक्का खान चिन्यूट हाउसिंग की इंतजामिया को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। एवेन्यू 1 में अराजी क्लियर होने से कमर्शियल हब भी मुयस्सर आएगी, जबकि 17 साल से के ब्लॉक के मुतासरीन प्लॉटों से महरूम थे। अभी आपको बताएंगे बाबे लाहौर मंसूबे में ताखीर और लागत में इजाफे के खिलाफ करारदाद मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है।
ठोकर पर बाब लाहौर का मंसूबा 5 माह की ताखीर के बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। डिजाइन में बार बार तब्दीली से मंसूबा ताखीर का बायस बन रहा है। करारदाद में यह भी कहा गया कि ताखीर की वजह से मंसूबे की लागत में भी 5 करोड़ का इजाफा हो गया है, जबकि इसी हवाले से करारदाद जमा करवाई गई है। बाब लाहौर मंसूबे में ताखीर और लागत में इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी गई। गाड़ी रजिस्टर्ड और ट्रांसफर करवाने और प्रॉपर्टी टैक्स की तफसीलात के लिए अपॉइंटमेंट लेना लाजमी करार दे दी गई। कोरोना वायरस के बाद तमाम दफातर खुलने के बावजूद महकमा एक्साइज मैनुअल सिस्टम खत्म करके सिर्फ अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम काम करने का फैसला कर लिया गया। अली साही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, आगाह कीजिएगा इस फैसले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से मैनुअल यानी आम जिस तरह शहरी पहले दफातर में जाके अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा सकते थे, ट्रांसफ़र करवा सकते थे या प्रॉपर्टी के हवाले से तमाम अपने काम करवा सकते थे, इसकी हौसला शिकनी के लिए और एजेंट माफिया की हौसला शिकनी के लिए महकमा एक्साइज ने कोरोना के दौरान शुरू किया गया अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। मैनुअल जो सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। DG एक्साइज का कहना है कि इससे पहले शहरी किसी भी काम के लिए जब एक्साइज दफ्तर आते थे तो उनको एजेंट के थ्रू या वो कोई एक्साइज हुकाम से मिलकर अपना काम करवा लेते थे, लेकिन सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर आने वाले शहरियों को एंटरटेन किया जाएगा। और इसमें जो इससे पहले कोरोना वायरस के दौरान काउंटर भी कम कायम किए गए थे और हर दफ्तर में एक शहरी को डील करने के लिए 16 मिनट की एक अपॉइंटमेंट दी जा रही थी, लेकिन अब चूँकि इस सिस्टम मैनुअल सिस्टम को ख़त्म किया गया है, सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है, तो तमाम दफातर में काउंटर भी बढ़ा दिए गए हैं और जो अपॉइंटमेंट का दौरानिया है वो 16 मिनट से कम करके 7 मिनट कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इंटरटेन हो सकें और इसमें शिकायत भी कम होंगी। जब ऑनलाइन सिस्टम होगा तो मालिक को खुद आना पड़ेगा अपनी गाड़ी। काउंटर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली साही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद खबर आपको देंगे। साबिक डायरेक्टर मुदस्सिर नजर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैनातियों पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बड़े नाम वाले क्रिकेटर्स को फैसला है। मुदस्सिर नजर की जानिब से कहा गया मोहम्मद यूनुस खान से तनख्वाहों पर मामला तय नहीं हुए थे, जबकि कोचेस की तकर्रियों में पसंद और नापसंद का रुझान देखा गया है। बोर्ड चलाना है तो बेहतर चलाएं, खुद को चलाने के लिए भर्तियां ना करें। मुदस्सिर नजर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। साबिक डायरेक्टर मुदस्सिर नजर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैनातियों पर रद्द अमल सामने आया है। बड़े नाम वाले क्रिकेटर्स को कोचेस मुकर्रर करना अच्छा फैसला है। मुदस्सिर नजर ने कहा कि मोहम्मद यूनुस खान से तनख्वाहों पर मामलात तय नहीं हुए थे। कोचेस की तकरीरों में पसंद और नापसंद का रुझान देखा गया है, ऐसा कहना है मुदस्सिर नजर का। उसका जो ग्रेजुएट्स है, पीपल लाइक मिसबा, इन्होंने कोचिंग कोर्सेज करने शुरू किए, क्योंकि अब PSL भी होती है पाकिस्तान में और वैसे भी ये इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के कोचेस कभी कभी लग जाते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेंस आ गई थी कि नहीं, अगर हमें कोचेस बनना है तो हमें कोच एजुकेशन करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया है। अब ये नहीं था कि हम कोच एजुकेशन जो पाकिस्तान में होती थी या होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या 2-3 अली ज़िया करवाता था या शाहिद असलम करवाता था या हारून और मैं करवाते। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मिलकर होता था और इसकी जो एक्रेडिटेशन है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आती। तो इस पूरे निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। छोटे छोटे कोचेस जिनके कुछ ने कोर्सेज किए हैं, कुछ ने किए ही नहीं हुए, बेशक वो इंटरनेशनल प्लेयर। तहरीक बहाली क्रिकेट एसोसिएशन का पैट्रन इन चीफ से बड़ा मुतालबा। MRCA का PCB मुलाजमीन कोचेस की तनख्वाहें पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया गया है। तहरीक बहाली क्रिकेट का तनख्वाहों को खुफिया रखने पर अदालत से रुजू का फैसला सामने आ रहा है। आपको बताते चलें कि MRCA की जानिब से कहा गया है कि खुफिया तौर पर महंगे तरीन ऑफिसर्स की तैनाती की गई और शहरी मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में जान सकते हैं। आपको बताते चलें कि ये मुतालबा मंजर आम पर आ रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, सदी के मारूफ अदीब इशफाक अहमद अगर जिंदा होते तो आज अपना 95वां यौम पैदाइश मना रहे होते।
اردو ادب کے شاہکار افسانے گڈریا کے خالق، ریڈیو پاکستان کے پروگرام تلقین شاہ کے براڈ کاسٹر، بامانی گفتگو اور طرز مزاح سے سننے والوں کو نصیحتیں کرنے والے معروف دانشور اشفاق احمد کا آج 95واں یوم پیدائش ہے۔ ان کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ادب کی دنیا میں اپنا منفرد مقام بنایا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اشفاق احمد ایک افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، فلسفہ نواز، ادیب اور دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین براڈ کاسٹر بھی تھے۔ فنون لطیفہ کے علاوہ انہیں اصلاحی تحریروں اور صوفیانہ افکار سے خاص لگاؤ تھا۔ ریڈیو پر تلقین شاہ کے نام سے مزاح میں سماج کی خرابیوں پر ضرب لگاتے تو سامعین مسحور ہو جاتے۔ ان کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ادب کی دنیا میں اپنا منفرد مقام بنایا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ پی ٹی وی پر بہترین قصہ گوئی کے باعث پروگرام زاویہ ناظرین میں بے حد مقبول ہوا۔ 80 کی دہائی میں اشفاق احمد وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی رہے۔ اشفاق احمد کی تصانیف میں ایک محبت، 100 افسانے، اجلے پھول، سفر در سفر، کھیل کہانی، ایک محبت، 100 ڈرامے اور طوطا کہانی جیسے بہترین شاہکار شامل ہیں۔ زین مدنی حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔